class 12. Fine. Now, in this video, we are going to discuss the magnetic field intensity due to a very long, infinitely long current carrying wire. Infinitely long current carrying wire. So, at a particular point, near the point, we are going to find out the magnetic field intensity due to this wire, infinitely long wire. Magnetic field intensity at a near point due to a long straight current carrying conductor, also for the infinitely long current carrying straight wire or conductor. This is a diagram. I have drawn the diagram. This is the infinitely long straight wire. Dot dot means infinitely long, and I amount of current is flowing through it. Right? At point P, we are going to find out the magnetic field intensity. Of course, we are using the Biot-Savart's law, but what should be the basic idea how we are going to do it? Let us assume point P is at a distance from the perpendicular distance from the point Q. And on this particular infinitely long wire, I have taken a small current element, that is a DL, from here to here, DL. Right? And this DL, midpoint of the DL is at L distance from the perpendicular distance, this L distance. And from this particular point of the midpoint of your current element, I am joining it this particular line, and the position vector is R. Let us consider phi 1 is the angle made by this finite portion of the wire. First of all, we are going to find the magnetic field intensity due to the finite portion. Finite portion कहाँ से कहाँ तक? यहाँ से लेकर ये यहाँ तक. Finite portion. And after that, we are going to proceed towards the infinitely long. Right? तो यहाँ से ये finite portion का ये मान लेते हैं phi 2 एंगल है. ये phi 2. The direction of the angle is this. And from this perpendicular, this is a reference line or perpendicular line. From here, this other extreme of the finite wire is having an angle phi 2. This is phi 1, this is phi 2. The direction is this. Direction of this angle. Because from the reference point, we are going to find out the we are going to mention the angle, reference point. Right? This is the situation. So, how to proceed? We are using the Biot-Savart's law. From the Biot-Savart's law, first we are going to find the magnetic field intensity due to this small current element at point P. P point पर magnetic field intensity कितना होगा Biot-Savart's law के चलते. So magnetic field intensity at P due to small current element DL, छोटा current element के लिए. तो छोटा magnetic field intensity, that is a dB. The magnitude we are taking it first. Magnitude, then mu naught by 4 pi, Biot-Savart's law से I dl sin theta by r square. This is just to see the theta, the angle between the dl and the position vector r. Theta. The sine of theta, I dl sin theta by r square. This is the equation number 1. Now, डायरेक्शन वी कैन ईजिली फाइंड आउट. डायरेक्शन हम लोग कैसे यूज़ करेंगे? अगर क्रॉस प्रोडक्ट यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट है उसी के अनुसार हम लोग यूज़ करेंगे कि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मूव करेंगे. डीएल क्रॉस आर ऐसे मूव करेंगे तो आगे भी
इन्फॉर्म किए थे, बताए थे, ऐसे मूव करेंगे तो स्क्रू को हम लोग ऐसे मूव करेंगे। डीएल का ये डायरेक्शन, डीएल का वही डायरेक्शन होता है जो करंट का डायरेक्शन होता है, डीएल, और आर का ये डायरेक्शन। तो डीएल क्रॉस आर ऐसे मूव करेंगे, ऐसे मतलब क्लॉकवाइज मूव करेंगे तो स्क्रू का मूवमेंट किधर होगा, डाउनवर्ड। तो डाउनवर्ड यहाँ पर इस कंसीडर पॉइंट ये है, तो डाउनवर्ड हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, क्रॉस करके एन सर्कल, ये डायरेक्शन होगा। नाउ आवर एम इज टू फाइंड आउट दिस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ दिस फाई एंड फाई 1 फाई 2, उस टर्म में एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, उस टर्म में हमको एक्सप्रेस करना है। नाउ हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पर एक राइट एंगल ट्राइंगल हमको नजर आ रहा है, दैट इज ओ क्यू पी, राइट एंगल ट्राइंगल, राइट। सो इन दिस ओ क्यू पी वी कैन राइट इन right angle triangle OQP में हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पर थीटा प्लस फाई, ये एंगल फाई है, थीटा प्लस फाई इज इक्वल टू 90 डिग्री, लिख सकते हैं, या थीटा प्लस फाई इज इक्वल टू 90 डिग्री, थीटा प्लस फाई इज इक्वल टू 90 डिग्री। सो थीटा प्लस फाई इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 90 माइनस फाइव, 90 माइनस फाइव। तो सिमिलरली हम लोग क्या करेंगे, हमको कन्वर्ट करना है, ये सबको कन्वर्ट करना होगा। तो साइन थीटा इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं साइन 90 माइनस फाइव, ये सुनो, साइन थीटा इज इक्वल टू साइन 90 माइनस फाइव, साइन 90 माइनस फाइव इज इक्वल टू कॉस फाइव, इसको दे दिया नंबर 2। एंड अब हम लोग देखते हैं कॉस फाइव का वैल्यू क्या है, कॉस बी बाई एच, यहाँ पर देखिए इसी राइट एंगल ट्राइंगल में कॉस फाइव बी बाई एच मीन्स ए बाई आर, cos phi is equal to a by r, cos phi is equal to a by r, so r is equal to a by cos phi, that is a sec phi हो जाएगा, a sec phi, 1 by cos phi is equal to sec phi, and again now the work is not over, also we have to find the tan phi, इसी एंगल में tan phi क्या होगा, L by A, P by B, L by A, tan phi P by B, right, L by A, tan phi L by A। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, L को निकाल के फिर DL निकालेंगे, तब हम यहाँ पर पुट करेंगे। तो यहाँ पर L इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, A tan phi, A tan phi। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको किसको, L इज इक्वल टू A tan phi जो आया, L इज इक्वल टू A tan phi, इसको हम लोग फर्दर इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू फाई। तो डिफ्रेंशिएट करेंगे DL बाई डी फाई इज इक्वल टू A tan फाई का डिफ्रेंशिएशन हो गया सेक स्क्वायर फाई, tan फाई का डिफ्रेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर फाई। अब यहाँ पर DL का वैल्यू मेरा आ जाएगा, DL का वैल्यू आ जाएगा A को थोड़ा ठीक से लिख देते हैं, A सेक स्क्वायर फाई इंटू DL, इसको दे दिया नंबर 4। DL इज इक्वल टू A सेक स्क्वायर फाई इंटू DL, दैट इज इक्वेशन नंबर 4।
राइट। अब मेरे पास देखिए यहाँ पर क्या क्या आई, तो अब सबका वैल्यू हम इसी इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। आई तो मालूम है, डीएल का वैल्यू हम यहाँ से निकाल लिए, यहाँ से पुट करेंगे, ठीक है। साइन थीटा का वैल्यू हम लोग कॉस फाई लिख सकते हैं यहाँ पर, आर का वैल्यू ए सेक फाई लिख सकते हैं यहाँ पर। ये सब का वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। Now putting the values are different values of what? DL, sin phi, R from the different equations in equation 1. ये equation 1 था। तो equation 1 will become dB is equal to mu naught by 4 pi I, dl का वैल्यू a सेक स्क्वायर, फाई डी फाई, a सेक स्क्वायर फाई डी फाई, एंड साइन थीटा का वैल्यू हो गया कॉस फाई। अब नीचे में क्या था? आर का वैल्यू कितना आया था? आर का वैल्यू ए आर स्क्वायर है तो ए स्क्वायर सेक स्क्वायर फाई, ए स्क्वायर सेक स्क्वायर फाई, राइट। अब यहां पर जो कटता है तो काट देंगे, तो यहां पर मेरा क्या बचेगा? यह सेक स्क्वायर फाई एक कैंसिल हो गया, तो मेरा अल्टीमेटली क्या आ जाएगा यहाँ पर? म्यू नॉट आई बाई 4 पाई एंड हियर 1 ए इंटू कॉस फाई डी फाई, राइट। देख लीजिए, ए कैंसिल, ए 1 ए लेफ्ट, सेक स्क्वायर फाई कैंसिल, सेक स्क्वायर फाई कैंसिल, तो अल्टीमेटली मी नॉट आई बाई 4 पाई ए कॉस फाई डी फाई। नाउ फॉर ये क्या निकला मेरा? मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड ड्यू टू द डीएल, केवल डीएल जो छोटा करंट एलिमेंट, उसके चलते मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का ये एक्सप्रेशन आया, ये छोटा सा एक्सप्रेशन आया है। लेकिन यहां पर हमको फाइनाइट लेंथ है, यहां से लेकर ये वाला पॉइंट से लेकर और ये वाला पॉइंट तक, यहां तक का निकालना है, और एंगल फाई के टर्म में हमको एक्सप्रेस करना है। सो फॉर होल finite conductor, finite straight current carrying conductor, क्या करेंगे? इंटीग्रेट कर देंगे। सो B इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dB इज इक्वल टू, इंटीग्रेशन करेंगे तो जो कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल लेते हैं, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई ए इंटीग्रेशन ऑफ कॉस फाई डी फाई। क्या ये कंप्लीट हो गया? नहीं, इसका लिमिट में लेना होगा ना। लिमिट हम लोग कहाँ से कहाँ तक लेंगे? लिमिट हम लोग देखिए यहाँ से एक ही डायरेक्शन में लिमिट लेते हैं। ये एंगल हम ऐसे मेज़र किए थे और इसका ऐसे थे। अगर हम इस डायरेक्शन में मेज़र कर रहे हैं तो ये फाई 1 यहाँ से लेकर यहाँ तक, अगर हम इस डायरेक्शन में मेज़र करेंगे तो ये फाई 1 हो जाएगा माइनस फाई 1, फाई 1 हो जाएगा माइनस फाई 1। क्यों? क्योंकि हम जो लिए थे, एज्यूम किए थे ऐसे करके इस डायरेक्शन में, मीन्स ये एंटी क्लॉक था। हम क्लॉकवाइज लेके चल रहे हैं, तो माइनस फाई 1 टू फाई 2, दैट शुड बी द लिमिट, माइनस फाई 1 टू फाई 2। सो लिमिट लिख देंगे माइनस फाई 1 टू फाई 2।
-φ1 to φ2। तो b का वैल्यू ये इतना आया था। अब इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई 4 पाई a। इंटीग्रेशन करेंगे cos फाई का क्या होगा, साइन फाई लिमिट -φ1 to φ2 ऐसे लिखते हैं लिमिट। cos फाई का इंटीग्रेशन हो गया साइन फाई, लिमिट हम यहाँ लिख दिया। नाउ पुट द लिमिट म्यू नॉट आई बाई 4 पाई a साइन अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट माइनस ऑफ साइन -φ1 साइन φ2 माइनस साइन -φ1। तो लिमिट हम लोग हमेशा जो एंगल है वहां पुट कर रहे हैं। यहाँ एंगल -φ1 है इसीलिए यहाँ पर -φ1, राइट। नाउ साइन -θ इज इक्वल टू -sin θ, ये तो मालूम है। साइन -θ इज इक्वल टू -sin θ होता है, ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े हो। तो b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई 4 पाई a, यहाँ हो गया साइन φ2 माइनस साइन -θ इज -φ1 इज इक्वल टू -sin φ, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो साइन φ1, राइट। यू रिमेंबर साइन -θ इज इक्वल टू -sin θ। So this is the final expression for the magnetic field intensity due to the finite length of the wire। finite length है उसके लिए। अभी ये इन्फाइनाइट का नहीं निकला, तो ये कितना आया, b इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी म्यू नॉट आई बाई 4 पाई a साइन θ2 प्लस साइन θ1, राइट। नाउ ये क्या हुआ, फाइनाइट लेंथ के लिए। फाइनाइट करंट कैरिंग वायर, स्ट्रेट वायर, उसके चलते आया, फाइनाइट लेंथ के लिए आया इतना। अब हमको इनफाइनाइट, फॉर इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर, उसके लिए मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी यहीं से निकलेगा। अब इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर का मतलब क्या है, ऐसा वायर जिससे करंट फ्लो कर रहा है जो बहुत लंबा वायर है। ये डॉट 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 का मतलब इनफाइनाइटली लॉन्ग। अब ये जितना भी लंबा होगा, अब देखिए एंगल ऑफ एलिवेशन और डिक्लेरेशन का काम है, जितना भी लंबा होगा वायर, तो ये वाला एंगल जो है φ2 इतना 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 होते होते मैक्सिमम ये 90 हो सकता है, जितना भी लंबा। सिमिलरली एंगल ऑफ डिक्लिनेशन जितना भी होगा मैक्सिमम 90 होगा। तो फॉर इन्फाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर φ1 इज इक्वल टू φ2 इज इक्वल टू 90 डिग्री, 90 डिग्री होगा। नाउ b इज इक्वल टू, नाउ पुट द वैल्यू म्यू नॉट आई बाई 4 पाई a साइन ऑफ 90 प्लस साइन ऑफ 90, φ1 और φ2 दोनों 90 से ज़्यादा नहीं हो सकता है, दैट इज मैक्सिमम। सो b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई a साइन 91 मीन्स ट्वाइस इंटू 2, 1 + 1 2 हो गया। सो b का वैल्यू आ गया ट्वाइस म्यू नॉट आई बाई 4 पाई a। दिस, इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, अगर काटना चाहें तो ये हो जाएगा म्यू नॉट आई बाई 2 पाई a, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई a। दैट इज द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू द infinitely long wire, infinitely long current carrying wire।
सो बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई 2 पाई है. यूजुअली म्यू नॉट बाई 4 पाई को हम लोग न्यूमेरिकल के लिए छोड़ देते हैं क्योंकि इसका वैल्यू नोन होता है 10⁻⁷. सो इसका नोन होता है, डायरेक्ट हम पुट कर सकते हैं इसीलिए. लेकिन अगर काटना चाहे कोई तो काट के म्यू नॉट आई बाई 2 पाई है. राइट. सो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी is inversely proportional to that particular distance a. कौन सा डिस्टेंस है? ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट. राइट. यही था मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी at a near point due to the straight long current carrying wire or conductor, and also for the infinitely long current carrying conductor. ओके. तो ये हो गया, ये दिस एक्सप्रेशन इज फॉर द फाइनाइट लेंथ ऑफ द वायर, करंट कैरिंग वायर, एंड दिस इज फॉर द इनफाइनाइट. ओके देन, थैंक यू.